Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do yet another pick a card reading. And today's reading's topic is June predictions, June 2026 predictions, or just June predictions. I mean, you may come across this reading uh, in the next year or in any upcoming years as well. So these predictions will be for the month of June whenever you see it around. So let's see that. But before doing that, I would like to mention uh, that there are a lot of people who are watching my video and aren't subscribing. So I am setting this intention that only those people who are subscribing to my channel will be able to actually get the energy that I am channeling here, which is obviously authentic. So I would really appreciate if you could uh, subscribe to the channel to actually receive that energy, so that an energy exchange could happen here. So I would like to say that, and yeah, now I shall see you at your reading. So, hello, pal number 2, welcome to your reading. So, we shall see what is coming for you in the month of June this year, or in whichever year you're seeing for the month of June there. So, we will see that. But before starting this reading, I would like to mention that I do take personal readings. So if you would want a personal reading from me, you can connect to me through my email ID given in the description box below. So yeah, and sorry अगर मैं कभी बोलते बोलते मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोलती हूँ, क्योंकि आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है मैं जल्दी नहीं बोल पाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है. सो एडजस्ट कर लेना थोड़ा. ओके, सो हम एस्पेक्ट्स में देखेंगे, मतलब ग्रुप्स में देखेंगे जून के लिए. सो पहले हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या हो रहा है जून के मंथ में. देन हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है. देन वी विल सी what is happening in your personal life, and then we will see what spiritually is happening in your life, जो आपकी पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है in the month of June. So let's see first what is happening in the career of pile number 2 people in the month of June. Okay, those cards dropped. What is happening in the month of June for pile number 2's people in their career? Pile 2's career in June. Pile 2's career in June. Okay, that fell. Pile 2's career in June. Pile 2's career in June. Okay, yeah. This one, I think, yeah. That is all for career. Let's set this up later. Okay. Then we will see what is happening for you in your love life. Pile number 2 in the month of June. We'll shuffle this. What is happening for you? Pile number 2 in the month of June. What is happening for you? Pile number 2 in the month of June in your love life. Pile 2's love life in June. Okay, that was direct. Yeah, I think that is all for the love life. Then
Bottom of the deck we have 10 of Pentacles. Now we will see your personal life. What is happening for pile number 2 in their personal life? Pile number 2's personal life in June. Pile number 2's personal life in June. Okay. Pile number 2 personal life in June. God. कार्ड बाहर आ गए ऐसे. ये 2 फ्लिप हो गए, मैं ये लूँगी. आई थिंक ये इनफ है. ओके. क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से ये पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं. ठीक है. नाउ we will see what is happening spiritually for pile number 2 in the month of June. What is happening for pile number 2 in the month of June spiritually? What is happening for pile number 2 in the month of June spiritually? I think, okay, these I'm not taking, these are too much. One more card, Spirit. What is happening for pile number 2 in the month of June spiritually? Okay, this one, yes. Know that you're loved. Go deeper, think it through, and be proud of yourself. Nice. There's a color coordination here. Nice. Okay. So firstly, let's see what do we have for you. Pile number 2 for your career. The cards. Okay. So firstly, we have the Knight of Swords. The King of Wands, the 8 of Pentacles, the King of, I thought I switched them. Yeah, the King of Pentacles. I thought I said it earlier, so I'm like, Ace of Wands and the Death card. Now let's see what cards do we have for you in your love life. Okay, we have the 8 of Pentacles again. The King of Pentacles repeat हो रहे cards दूसरी deck से भी. The Hierophant, the Death. My God. Repeat Knight of Wands. Okay, this is different. The Sun card. I feel so happy seeing the Sun card ना. ऐसा आप लोग के साथ भी होता है ऐसा? मुझे इतनी खुशी होती है सन कार्ड देख के. I don't know, the yellow color is something that makes me very happy. Yeah. And the 10 of Pentacles, the last card. Yes. Oops. Now for your personal life, we have the Page of Swords, the Ace of Cups, the 9 of Cups, the World card, the Page of Wands, and the Queen of Cups, and lastly we have the Four of Cups. The Queen of Cups was from the bottom of the deck. Okay, now so firstly यहाँ पे एक मुझे आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग थोड़े से यंग हो सकते हैं एज में, लाइक मे बी आई नो आई एम गेटिंग ऑनेस्टली 18-19 हियर. तो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो मे बी 18-19 का हो. सॉरी या मुझे 18-19 आ रहा है दिमाग में, तो उतना कोई यंग हो सकता है जो ये रीडिंग दिख रहा है. उसके अलावा मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो
आई थिंक यहाँ पे किसी ने कुछ तो अपनी लाइफ को लेके इंटेंशन सेट किए हैं, या तो, एंड मुझे लगता है ये बहुत रीसेंट पास्ट में आपने किया है कि ओके, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने, जो भी जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया, आई थिंक आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर चाहिए। एंड आई थिंक आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि विदाउट अ स्ट्रक्चर लाइफ नहीं चल सकती। एंड वो स्ट्रक्चर से मेरा मतलब सिर्फ एक रूटीन बनाना नहीं है, बट हाँ, रूटीन बनाना भी है, बट वो रूटीन किस बेसिस पे बन रहा है, कि आपके गोल्स क्या हैं। एंड इट्स लाइक कि ठीक है, अगर आप गोल्स भी डिसाइड करते हैं, बट वो गोल लाइक द द डेली गोल्स कम फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म और अ मेजर गोल, जिसको आप डेली टास्क में डिवाइड करते हैं, राइट? तो आई थिंक वैसा कुछ शायद आप लोगों ने किया है वेरी रिसेंटली। एंड आई फील उसके बाद आप अपने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है। पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब यहाँ पर क्या, मैं ये भी बता देती हूँ। पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब है कि हाउ यू आर विथ योर फैमिली, हाउ यू आर विथ योर सेल्फ, what are your shadows, what are you scared of, what happens, like मुझे ना वो याद आ रहा है, जैसे सेलिब्रिटीज का होता है ना, अ डे इन देयर लाइफ। सो इट्स लाइक योर पर्सनल लाइफ टॉक्स टॉक्स अबाउट अ डे इन योर लाइफ। सो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड आई फील इसलिए शायद आपकी पर्सनल लाइफ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने जो भी आपने सोचा है ना, इंटेंशन डिसाइड किए कि यार मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, या दिस इज़ माई लाइफ पर्पस ऑल्सो। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने लाइफ पर्पस के बारे में भी सोचा है शायद, या उसको लेके देर काइंड ऑफ स्टार्टिंग ऑन थिंग्स राइट नाउ। एक मुझे यंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेज है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड। तो पेजेस की एनर्जी थोड़ी यंग बिगिनर एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाती है। तो आप उन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पहले तो बोला जा रहा है कि इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थॉट, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लाइक, मैं ये नहीं कहती कि आपके पास लक नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपके पास एक बिगिनर्स लक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या आई सी दैट, एंड आई फील उसकी वजह से ना आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अपने अंदर ना प्रोसेस कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। इनर वर्क मुझे करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। इनर वर्क की तरफ आपका थोड़ा सा जाएगा जून मंथ के अंदर ही, मुझे ऐसा लगता है। जून मंथ के अंदर ही आप सोचेंगे, या आपको स्ट्राइक होगा, या एक टावर मोमेंट भी आ सकता है। बट टावर का कार्ड मुझे दिखा नहीं, बट मुझे स्टिल कहीं ना कहीं टावर की एनर्जी यहाँ पे आती है। तो यस, तो ये एक चीज़ है, आप इनर वर्क करने की सोचेंगे पाइल नंबर 2 जून के मंथ में। एंड उसको लेके मैं यही कहूँगी कि इट विल नॉट बी ईजी, यस इट विल नॉट बी ईजी, बट trust me, a life after doing lots of inner work is peaceful, is like, yeah, it is calm, एक कहीं ना कहीं एक आपको अपने अंदर कामनेस फील होती है आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ क्योस। सो मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू फील कि आपको इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है, जर्नलिंग करनी है, अपने फियर्स के बारे में कुछ लिखना है, कुछ अपने वूंड्स को हील करना है, सो डोंट हेजिटेट फ्रॉम दैट। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, आपको वो करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपके लिए सही है समय, जब आपकी लाइफ आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रही है। सो प्लीज़ डू दैट। ये यहाँ पर उसके लिए आपको थम्स अप दिया जा रहा है इसके लिए। सो डोंट हेजिटेट फ्रॉम डूइंग दैट। एंड आई फील आपकी पर्सनल लाइफ आपके करियर को भी इन्फ्लुएंस करती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। आई फील सॉरी, आई डोंट नो, यहाँ पे बोलने में दिक्कत है, तो वैसे मुझे होती है कभी कभी, बट
मुझे यहाँ पे बोलने में दिक्कत इसलिए लग रही है, कहीं ना कहीं शायद आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप ना बोल नहीं पा रहे हैं अपने करियर को लेके। शायद एक स्ट्रेसफुल माहौल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास। या एंड वो स्ट्रेसफुल माहौल इसलिए क्योंकि यू नो या वो स्ट्रेसफुल माहौल इसलिए क्योंकि अभी एक अलाइनमेंट नहीं है लाइफ में। एक अलाइनमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जो अभी तक आपने किया इंटेंशन सेट वगैरह करना वो सब सही नहीं जा रहा। नहीं नहीं, वो सही जा रहा है, बट इसलिए कि एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी क्या इंटेंशंस है और एक्शंस में या प्रैक्टिकली आपकी लाइफ कैसे ले आउट है, तो उसमें मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट नहीं है। लाइक योर करियर इज़ नॉट रियली अलाइनिंग विथ वॉट यू आर। पॉइंट नंबर 2 हियर। एंड आई फील उस चीज़ को लेके आपके करियर में अभी कुछ टाइम तक वो एक एक टाइम चलेगा। मुझे लगता है मे बी आई फील 2026 के एंड तक आई फील ये एक सिचुएशन मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। या 2026 के दौरान ही आपको इस पूरे साल में ये रियलाइजेशन होने वाली है कि व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ एंड जो मेरे गोल है उसको मैं कैसे अपने वे ऑफ लाइफ में अपने रूटीन में ढाल सकता हूँ या ढाल सकती हूँ। वो कहीं ना कहीं आप सीखते हुए दिख रहे हैं। एंड जून का मंथ मुझे कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन को एकदम आपके अंदर सेट करवाने के लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आपको पहले रियलाइज होता है कि यार आई थिंक मैं मेरा जो करियर है वो सही नहीं है या इट इज़ नॉट रियली हु आई एम, तो वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो आपका थॉट है वो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए कंफर्म होता हुआ दिख रहा है इस मंथ। यस। एंड देन कमिंग टू योर लव लाइफ, तो आई थिंक लव लाइफ में यहाँ पे चेंजेस आएंगे। चेंजेस आएंगे और किस वे में आएंगे कि आई थिंक यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वो यहाँ पे मुझे आई फील या यहाँ पे मुझे वो एक्चुअली में सिंस यहाँ पर एक अपने आप के ऊपर काम करने वाली एनर्जी ओवरऑल ही मुझे दिखाई देती, तो आप वो कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर काम करते हुए तो मुझे दिख ही रहा है। एंड उसकी वजह से आई फील आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस चीज़ को लेके। या यहाँ पर एक कंपेनियनशिप मुझे दिखाई दे रही कि आप कुछ चीज़ें अपने बारे में रियलाइज करते हैं एंड द अदर पर्सन इज सपोर्टिंग यू। आई सी दैट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर इज there is support, I would say that. एंड आई फील जून के मंथ में ही नहीं, आई फील ये एक पूरा जर्नी है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इनर वर्क करना, शैडो वर्क करना, ये सारी चीज़ें दीज आर मतलब ये पूरी जर्नी है। ये आप इसको मार्क नहीं कर सकती कि ये इस मंथ से शुरू होगा और ये इतने टाइम में ओवर हो जाएगा। इट इज़ इन दैट नो बडी आई फील नोज कि उन्होंने एग्जैक्टली कौन से टाइम पर अपने आप के ऊपर इनर वर्क शुरू किया और वो कब एंड हुआ। बिकॉज इनर वर्क इज समथिंग जो कभी ख़त्म नहीं होता इस लाइफ में, क्योंकि हम इस अर्थ पे है ही इसलिए कि हम चीज़ें अपने आप के अंदर कुछ कार्मिक रिलीजेस कर सके, कार्मिक एंडिंग्स कर सके, कुछ चीज़ें कुछ लेसन से बाहर आए, सॉरी कुछ सर्कमस्टांसेस से बाहर आए एंड कुछ लेसन्स यहाँ पर लर्न करें। आई फील दैट सो इसलिए ही इनर वर्क इतना इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ में पर्टिकुलरली यही दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास कोई पर्सन है तो वो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे दैट इज़ द मोस्ट थिंग दैट यू वांट। एंड आई फील आपके स्पिरिट गाइड्स ये रियलाइज़ करते हैं एंड इसीलिए ही ये पर्सन जो आपकी लाइफ में ये भेजा भी शायद इसीलिए गया था, क्योंकि ये पर्सन इज़ देयर टू सपोर्ट यू इन द हार्ड टाइम। सो रियली
इनकी हेल्प लीजिएगा या इनसे बात कीजिएगा चीज़ों के बारे में जब आप कुछ नहीं समझ पाए, या कहीं ना कहीं जब आपको एक इमोशनली या इन एनी वे सपोर्ट की ज़रूरत हो. या एनीथिंग एल्स नाउ. या द लास्ट एस्पेक्ट दैट वी हैव इज़ कि स्पिरिचुअली ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा इन द मंथ ऑफ जून. सो यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स हैं वो है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, गो डीपर, सॉरी कैमरा हिला दिया थोड़ा मैंने, थिंक इट थ्रू एंड नो दैट you're loved. या सो एग्जैक्टली. सो इस पूरे मंथ में कुछ भी हो रहा हो, आप कैसी भी चीज़ों से डील कर रहे हो, आप अगर खुद को कंपेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं शायद अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ रही हो या उखाड़ रही, इन सारे थॉट्स में, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में एक चीज़ जो आपको याद रखनी है और इस चीज़ को अपने अंदर रखना है कि फर्स्टली दैट यू आर लव्ड. यस, यू आर लव्ड, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने इन सम वे चुना है to actually do certain things, to actually realize certain things and अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए ही आपके पास ये रियलाइजेशन आई है एंड आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं. दिस इनर वर्क एंड ऑल ऑफ दैट वो ऐसे ही नहीं आए क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट एंड हर कोई ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है. अब एज आई सेड अर्लियर एंड मैंने पहले भी बोला कि मैं कोइंसिडेंसेस में बिलीव नहीं करती, तो देर इज़ अ रीज़न कि ये वाला थॉट सिर्फ आप तक ही आया एंड सारे लोगों में नहीं है इस प्लैनेट पे जो भी हैं अभी इस वक्त लोग. और वो क्यों है? क्योंकि यू आर स्पेशल. पॉइंट नंबर 2, यू आर अमंग दोज पीपल हु इज स्पेशल. सो yeah, so just be proud of that and obviously be proud of yourself as a result of that. यहाँ पे ये चीज़ है. एंड या थिंक इट थ्रू. सो थिंक इट थ्रू से मुझे ये लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए इस चीज़ में आगे बढ़ना है. आपको जब लग रहा है कि मुझे आई फील मे बी आई शुड जर्नल समथिंग, मे बी आई शुड टॉक टू दिस, टॉक अबाउट दिस with someone on whom you trust, on whom you feel is reliable and would understand these things. Please just don't blabber all of this in front of all of the people, because हर कोई इस बात की डेप्थ को नहीं समझेगा. तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा. सो या उसी चीज़ को ले ही सोचना है आपको. यस, सो थोड़ा उस चीज़ को लेके केयरफुल रहिएगा. दैट्स वाई थिंक इट थ्रू है यहाँ पे. एंड देन गो डीपर. गो डीपर से यही है कि आपको अपना इनर वर्क चालू रखना है, नॉट जस्ट टिल जून बट like your entire life. Pile number 2, because अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यूनिवर्स आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है. अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की है? फर्स्टली आपकी है. आप अपने इमोशनल वेल बीइंग और सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, बट विद दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ the universe, the entire universe in some way. So इस चीज़ को लेके ये दिमाग में रखते हुए आपको अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है एंड या लाइक डीप जाना है उनमें. सो ये एक चीज़ है. तो ये जो मैंने बातें कही इन कार्ड से, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है स्पिरिचुअली जो आपके लिए हो रहे हैं, जो आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. और मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि पर्सनल लाइफ जो आपकी उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हुए मुझे ये दिख रहा है. यस, सो एनीथिंग एल्स स्पिरिट फॉर पाइल नंबर 2? आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर यू पाइल नंबर 2. अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपको लगता है आपसे
रेजोनेट हो रहे हैं, और उन मैसेजेस को मत लीजिए जो आपके लिए, आई एम सॉरी, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नहीं है. सो या, आई थिंक दैट इज़ ऑल. And if you like how I read cards, so please like, share and subscribe to my YouTube channel, because I feel आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से या कमेंट करने से एंड ऑब्वियसली इस एनर्जी को क्लेम करने से आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाता. तो अगर आप ये कर सकते हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. एंड I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye.